Yes. Again, I am making the same format. Serial number. Question number 14. I am going to solve. Essays for particulars. Then it's of amount. It's of asset amount is its liability and that is capital. Okay. So assets, erase it. To put the sign of minus. Liabilities, erase it. To put the sign of is equal to. This is capital. Upar for the examiner convenience amount and RA. AMT is an abbreviation of amount. आप चाहो तो आप पूरा word भी लिख सकते हैं amount in RA, that is Indian currency sign. Right, so whole question we are going to solve in rupees. Now come to the 14th. Tina commenced business and she is bringing 50,000 as capital. So पहला point क्या लिखेंगे? Business commenced with cash. Business अगर वो word started लिखता है हम started लिखेंगे, अगर वो commenced लिखता है question में हम भी commenced लिखेंगे. Business commenced with cash. So that lady is a businesswoman in this case. She is bringing 50,000. What is coming? Cash is coming. And in what form it is coming? For the first time when the proprietor brings the amount that we call capital, right? So this is capital. But first they write 50,000. Liabilities are nil and it is going to be capital. 50,000. Directly draw the double line to signify that the first point is over here. Right? So first point is over. Very easy. अब तक ये तो सबको आ गया होगा. Right? कैश में एक ही ट्रांजैक्शन में दो पार्ट है. वन इज ए जो कैश में खरीदा एंड अदर इज बी जो क्रेडिट में खरीदा. ठीक है. सो हम इकट्ठा लिखेंगे. गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट. परचेज गुड्स ऑन कैश एंड आल्सो ऑन क्रेडिट. जो क्रेडिट पे खरीदी है वो क्रेडिटर बना दीजिए. जो कैश में खरीदी है वो कैश कम कर दीजिए. कैश जा रहा है और सामान आ रहा है. सामान के आने को हम हमेशा स्टॉक कहते हैं इन अकाउंटेंसी टर्मिनोलॉजी. राइट. सो कैश में कितने की खरीदी है? सी फ्रॉम योर बुक दैट इज 20,000. 20,000 की कैश में खरीदी है. सो कैश विल गेट रिड्यूस्ड. कैश विल नाउ बी ऑफ 30,000. 20,000 की कैश में खरीदी वो स्टॉक हुआ. 30,000 की क्रेडिट में खरीदी तो स्टॉक ओवरऑल आपका 50,000 का हो गया. भाई 20 + 30 और कुछ आना नहीं है, सिर्फ लाइन लगा लीजिए. सो 20 की आपने कैश में खरीदी थी, 30 की आपने क्रेडिट में खरीदी थी. जो क्रेडिट में खरीदी है वो आपकी लायबिलिटी है. क्रेडिटर्स, राइट? क्रेडिटर्स हियर 30,000 दैट इज योर लायबिलिटी. व्हाट अबाउट माय कैपिटल? कैपिटल में नो चेंज एट ऑल. No income, no loss is there. So get the total. This is 80,000. This is 30,000. And the capital once again is 50,000. Again, my accounting equation gets satisfied. Left hand side of the equation is equal to right hand side of the equation. Watch it. So this is our now third point. Come to the third point. Sold goods for cash. Now who will tell? 40,000 का सामान बेचा है और cost थी 30,000. So now I am opening your screens and you people are supposed to tell me 30,000 का सामान 40 में बेचा? No, 40. Yes, 30,000 का सामान 40 में बेचा. What is CP? What is SP? So Jasmine is first girl on my screen. Jasmine unmute करो. Kinshal, she has raised hand. I will ask from you later. Let me ask from Jasmine first. Jasmine unmute करो. Hurry up. Jasmine. You are supposed to unmute as and when. Yes, very good. Jasmine, what is CP and what is SP in this case? CP and SP. Jasmine, I am waiting your answer. Jasmine, आपने unmute तो किया था अभी. Unmute yourself. Jasmine, unmute करो. रमनीक आप करो unmute. Ramneek, unmute yourself. Ramneek Singh. Sumandeep Singh, unmute करो. Yes, Himanshu, करिए जी unmute. Ma'am, cost price is 40,000 and selling price is 30,000. Okay.
selling price is not 30,000, cost price is 30 and selling price is 40 भाई। हिमांशु पढ़ो दोबारा से बुक में। गुड्स सोल्ड फॉर 40,000, ब्रैकेट में लिखा है कॉस्टिंग रुपीज 30,000, सो 10,000 इज प्रॉफिट भाई। क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000, बुक में लिखा है कॉस्टिंग रुपीज 30,000 फॉर रुपीज 40,000। कुछ नहीं कहा तो कैश में है, अगर क्रेडिट में होता तो वो खुद लिखता, कुछ नहीं लिखा तो कैश में ही बेचा है, फॉर कैश लिखा भी है रादर, राइट। सो ही इज राइटिंग हमने कैश में बेचा है, कैश आएगा 40,000, कैश आया, सामान गया, सो कैश में भी 40,000 ऐड करके 70, स्टॉक कितने का गया? 30 का, स्टॉक का 50 में से 30 माइनस करिए, 20 का रह गया, एसेट का टोटल आपका 90 हो गया, लायबिलिटीज अभी भी नहीं है, 10,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड कर देंगे, लायबिलिटीज आर नॉमिनल, दैट आर 30,000। Now what to do? Capital with us was 50,000. Add profit in it. That is 10,000. Profit add करने के बाद capital check करिए, तीन हो गई। So what is the capital now? That is 60,000. So is it matching? Yes, it is matching. Students, it is your duty to obey the teacher whenever I am asking you to unmute you yourself. You have to. ठीक है? So be alert, be attentive. Come to fourth point. मैच कर रहा है भाई, 90 minus 30 is equal to 60,000. Come to next. Rent paid, क्या गया? कैश गया, और रेंट being an expense, कैपिटल भी चलेगी साथ में। रेंट को कैपिटल में से माइनस करो और कैश में से भी माइनस करो। सिंपल एक्सपेंडिचर, रेंट पेड, दैट इज रुपीज 5,000। तो कैश को 5,000 से माइनस करो, कैश रह जाएगा 65,000। स्टॉक एज इट इज आपका 20,000, दो ही एसेट्स हैं हमारे, 85,000, लायबिलिटीज 30,000 की चल रही है क्रेडिटर्स के साथ। जो रेंट है वो एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस होते हैं, सारी इनकम्स कैपिटल में क्या होती हैं? ऐड होती हैं। सी द बोर्ड फ्रॉम द बॉटम, राइट। सो दिस इज आवर कैपिटल, दैट वाज 60,000 minus rent 5,000, so that comes to me 55,000। देखो जी मैच कर रहा है, बिल्कुल चल रहा है। 85,000 minus 30 is equal to 55,000। Any doubt to anyone till now? You may ask. किसी को कुछ पूछना है? You may ask. Yes, any doubt to anyone? You may raise your hand. So fourth तक मैंने complete कर लिया। In order to do my fifth, I will be erasing all the first three transactions, but I need to depend upon fourth. I am not erasing it intentionally. फिफ्थ करने के लिए फोर्थ के ऊपर में डिपेंड हो, ठीक है, क्योंकि फोर्थ में चेंजेस होंगी जो फिफ्थ की ट्रांजैक्शन में भी बोलेगा। एवरी प्रोसीडिंग ट्रांजैक्शन इज बीइंग यूज्ड फॉर डूइंग द सक्सीडिंग ट्रांजैक्शन। प्रीवियस ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड रहते हैं हम करंट ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए, करंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, राइट। So let me read all the lines. Come to the fifth point here. फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। 15,000 का फर्नीचर खरीदा लेकिन उधार में, क्रेडिट का मतलब है उधार में खरीदा। Whenever you are buying the furniture on credit, cash will never get reduced, but furniture will become your asset and आपका एक नया क्रेडिटर बन जाएगा। तो क्रेडिटर हम बढ़ा देंगे, क्रेडिटर हमारे अब 45,000 के हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिटर मेरे 30,000 के चल रहे हैं। आप अब की बार फर्नीचर भी उधार पे खरीद रहे हो, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। So it is not essential that every time you buy the stock on credit, you can buy any of your asset on credit. So hereby we are buying the asset on credit. Furniture purchase on credit, right? So we bought furniture, cash is remaining untouched. Why? Because we are not making the payment in cash. So cash I will be writing as it is.
Stock I will be writing as it is 20,000. एक नया asset आया which we call furniture and the furniture is 15,000. आपको सिखाया हुआ है पुराने चोचल में नया ऐड कर दो 85,000 में 15,000 ऐड किया तो ये asset का टोटल 1 लाख बना। बार-बार टोटल नहीं करने बैठना। Get the preceding total in order to get the total of succeeding item means for the current item we depend upon the previous transaction, right? So creditors are capital में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Creditors are now 45,000 mental calculation 30 में 15 ऐड कर दिया 30,000 plus 15,000 45,000. What about my capital? Remaining same and again your equation is matching 55. यहाँ तक किसी को कुछ पूछ ले you may send your query in my chat box. एसेट आया कैश नहीं गया एक एसेट बढ़ा एक लायबिलिटी बढ़ी आगे चलते हैं। यस अब की बार रेफ्रिजरेटर खरीदा लेकिन पर्सनल यूज के लिए एसेट का कुछ भी ना हो जब कभी भी ये पर्सनल यूज है तो ड्राइंग है राइट और कैश में खरीदा है कैश को कम करो कैपिटल को कम करो। एनीथिंग यू बाय फॉर योर पर्सनल यूज इवन यू पे द रेंट फॉर द रेजिडेंस आप जहां पे किराए पे रह रहा है मेरा प्रोप्राइटर अगर उसकी उस जगह का रेंट वो बिजनेस में से पे करता है तो भी वो ड्राइंग है उसे रेंट नहीं मानना। एनी एक्सपेंडिचर which he pay for his own use for his own purpose that becomes the drawings of the business. So क्या लिखेंगे bought refrigerator bought means purchased refrigerator generator for personal use refrigerator for personal use कितने का खरीदा कैश उतने से कम कर दीजिए बिजनेस का कैश को ले गया 4,000 कोई रेफ्रिजरेटर 4,000 का नहीं आता भाई पुराने क्वेश्चन बने हैं he has made the items or the amounts tentative right 4,000 कैश में से कम करिए 65,000 का कैश चल रहा है 4,000 माइनस कर दीजिए 61,000 का कैश रह जाएगा। स्टॉक इज सेम रेफ्रिजरेटर को अपना एसेट नहीं बनाएंगे वो घर लेके गया है वो एसेट। फर्नीचर as it is furniture was for business इसलिए asset पे लिखा so overall 4,000 minus कर दीजिए 96,000 बन जाएगा total। creditors are once again same as of your serial number 5 6 में भी same रहा लेकिन जो drawings है वो मेरी capital को जरूर reduce करेगी। तो capital was in your books of accounts 55,000 minus drawings that are 4,000 so it is 51,000 it is matching once again 96,000 में से 45,000 माइनस करिए फिर से 51,000 आएगा। अगर कहीं आपकी मैच नहीं करती तो कोई ना कोई गलती आपने जरूर करती है क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ठीक है। सो दिस वाज योर 6 पॉइंट नाउ रीड 7 पॉइंट और माइंड में सोचो क्या आया क्या गया। What is coming in which asset is increasing which liability is decreasing etc etc. What is the effect of that transaction on capital? So 7. Come to 7 point. Yes. Then purchase building for cash. Business के लिए building खरीदी. Purchased building for cash. For cash. कितने की खरीदी गई? 20,000 की कैश में से 20,000 कम कर दीजिए और बिल्डिंग आपका एक एसेट बन जाएगा. That is your fixed asset. That is your non-current asset. So building becomes our asset here, right? कैश में से कम करिए 20,000 कैश आपका 41 का हो जाएगा। स्टॉक is same 20,000 furniture is same 15,000 and a new asset I am writing that is building 20,000। कैश के टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा एक एसेट अगर कम हुआ तो उसी अमाउंट से दूसरा एसेट भी बना that is 96,000 टोटल से। क्रेडिटर्स आर सेम एक एसेट बढ़ा दूसरा एसेट कम हुआ ये कैसी ट्रांजैक्शन है।
cash is coming down and building a new asset we are creating, right? That is creditors again same, and the capital will also remain. Capital is 51,000. Right? Now, wages outstanding. Next transaction is wages outstanding. In order to do 8, I have to depend upon 7. What is the meaning of wages outstanding? Same as of wages due. That is our liability. खर्चा हो या ना हो, आपने कैपिटल में से माइनस करना है. आने वाले टाइम में आपको ये खर्चा पे करना होगा. हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सपेंसेस पेड और पेएबल बोथ आर टू बी रिकॉर्डेड. Income received or receivable both are to be recorded. So wages outstanding 8th number. लाइबिलिटीज को बढ़ा दीजिए क्योंकि अभी तक आपने ये नहीं पे किया, और साथ में कैपिटल में से कम कर दीजिए. एसेट विल रिमेन सेम. कैश इज 41,000. योर स्टॉक इज 20,000. फर्नीचर इज 15,000. Building is 20,000. Total is same 96,000. Yes, wages outstanding creditors we add नहीं करेंगे. Wages outstanding का अलग से एक नाम लिखेंगे. Because wages outstanding अपने आप में एक representative personal account है. It is representing those laborers to whom still we haven't paid 2,000. So creditors 45,000 के लिए आने दीजिए liability वाले column में, और wages outstanding अलग से लिख दीजिए. Outstanding को मैं OS लिखती हूँ 2,000. So liabilities आपकी बन गई 47,000, right? Capital students liability 51,000. So wages outstanding I will deduct from capital. Capital is 51,000. Deduct wages outstanding. This is OS 2,000. So remaining capital is 49,000. What do you judge? 96,000 में से 47,000 अगर माइनस करें तो 49,000 ही बनेगा. So it is matching. Now it's your turn. If you have any problem, you may ask. Any doubt to anyone, you may ask. किसी को कुछ पूछना है? Any doubt to anyone? Is there any confusion? Is there any doubt? Right? So should I proceed to the next? तो बाकी आप खुद solve करोगे इसे. George started business with cash and bank balance. Business started with cash and bank balance. दोनों लिख दीजिए. Business started with cash and bank balance. मीन्स कुछ पैसा उसने बैंक के अकाउंट में भी जमा करवा दिया बिजनेस के नाम पे, राइट? सो कितना कैश है जॉर्ज लेके आया? 45,000. कितना बैंक का बैलेंस है? 35,000. Hereby we have cash 45,000 and we have bank balance with us that is 35,000. So कुल मिला के आपकी कैपिटल हो गई बेटा जी 80,000. लायबिलिटीज नहीं है तो डैश डाल दीजिए. यही आपकी कैपिटल हुई 80,000. Clear? Now come to the second point. Purchase goods for cash and credit. Ditto as of 14. दो बार आपने सामान खरीदा, एक बार कैश में एक बार क्रेडिट में. Purchase goods on cash and credit. नहीं करवाऊंगी मैं, ये आप खुद करोगे. ओवरऑल कैश में जो सामान खरीदा और क्रेडिट में खरीदा, टोटल मिला के आपका 30 बनेगा. स्टॉक को 30,000 लिख देना, और आपने कैश को रिड्यूस करना है 20,000 से. जो उधार में 10,000 खरीदा है उसे क्रेडिटर बना देना. दैट्स इट. ठीक है, 10,000 के क्रेडिटर्स होंगे, 30,000 का स्टॉक होगा, 20,000 से कैश कम कर देना. ऑलरेडी डिस्कस इन 14 क्वेश्चन. यस, अब आपके पास अगला समझना जरा. 30,000 का सामान था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कहता जो ऊपर वाला सामान है उसका हाफ, पहले तो इसका हाफ करिए. सिंपल मैथ्स. 30,000 का हाफ किया 15,000. 30,000 का हाफ मैंने 15,000 का सामान 20% प्रॉफिट पे बेचा, और कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना. ये कॉस्ट ही तो है. 15,000 का 20% कैलकुलेट करिए, 3,000 आएगा. इट मींस कि 15,000 का सामान आपने 18 में बेचा. अब की बार सेलिंग प्राइस मैंने खुद कैलकुलेट करी. आई एम राइटिंग इट हियर. 15,000 वाज माय सीपी.
पहले वो क्वेश्चन में आपको एसपी भी दिया करता था, अब वो कहता है सीपी का 20% कैलकुलेट करो, तो हमें नहीं कैलकुलेट करना आता क्या? सिंपल फंडा, 15,000 का 20% कैलकुलेट करो 3,000, इट मींस कि 3,000 प्रॉफिट ऐड करके मैंने वो सामान 18,000 में सेल, जब मैंने 18,000 में वो सेल किया तो 18,000 आपका क्या आ जाएगा? कैश बढ़ जाएगा, 15,000 आपका स्टॉक कम होगा और जो 3,000 प्रॉफिट है कैपिटल में ऐड कर देना. So next of the points you have to do on your own on your accountancy register. If there will be any problem, then only I will solve. This was only tough. Then I have dividend receipt. एक और पॉइंट है जो डिस्कस करने वाला है. पहले तो बिजनेस स्टडीज में मैम आपको करवाएंगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं तो उन शेयर्स के ऊपर आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, उस रिवॉर्ड को डिविडेंड कहते हैं. ठीक है, सो डिविडेंड आया और सीधा मेरे बैंक के अकाउंट में जमा हो गया. बैंक ड्राफ्ट लिखा है ना, तो जहां से भी डिविडेंड आया उसने मेरे बैंक के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए. तो आपने डिविडेंड को एक तो इनकम लिखाना, ठीक है, कैपिटल में ऐड करोगे, और दूसरा बैंक का बैलेंस बढ़ाओगे. दिस वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग, डिविडेंड वी आर रिसीविंग फ्रॉम टाटा टी कंपनी. मींस टाटा टी कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे थे, तो उसने मेरे को एक बैंक ड्राफ्ट भेजा जो मैंने बैंक में जमा करवा दिया, और ड्राफ्ट का पैसा सीधा मेरे अकाउंट में जाता है. तो ये मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट के बैलेंस में 4,000 ऐड कर देना, और डिविडेंड इज योर इनकम. सारी इनकम्स कैपिटल में क्या होती हैं? ऐड. सो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आई डिस्कस्ड विद यू. फिफ्थ एंड सिक्स्थ यू हैव टू थिंक. कल आते ही पहले मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट आपसे पूछना है, आपसे पूछना है कि आपने क्या किया. देन आई विल बी प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट. राइट, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे. बाकी कंटिन्यू करेंगे कल.